नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे, ओशो का समृद्धि के प्रति दृष्टिकोण। क्या आप जानते हैं कि समृद्धि केवल धन और संपत्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है, एक जीवन जीने का तरीका है। आज हम जानेंगे कि कैसे ओशो की शिक्षाएं हमें अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित करने में मदद कर सकती हैं। इस वीडियो में हम ओशो के कुछ विचारों को उनके ही अपने शब्दों में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप समृद्धि की खोज में हैं? क्या आप अपने जीवन में खुशियों और समृद्धि की तलाश कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओशो की शिक्षाएं आपके जीवन को बदल सकती हैं। ओशो की समृद्धि की अवधारणा। ओशो के अनुसार समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया में भी समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं ओशो क्या कहते हैं इस बारे में। The mind has a natural tendency to get quickly fixed ideas. It is very much afraid of change because change means rearrangement. Each time you change something, you have to rearrange your whole inner being. Mind wants to live with fixed ideas. So when a person comes to me, and it has been happening for 35 years continuously, he starts loving me. He comes closer, becomes intimate, and then gets a fixed idea. And that's where he misses me. Because now his fixed idea is going to create trouble. I am not an idea, and I am not fixed. I am changing. I am in absolute agreement with Heraclitus that you cannot step twice in the same river. Translated, it means you cannot meet the same person again. I not only agree with him, I go a little further. I say you cannot step in the same river even once. Again, translated to the human world, it means you cannot meet the same person even once. Because even while you are meeting him, he is changing. You are changing. The whole world is changing. ओशो का ध्यान और समृद्धि। ओशो का मानना था कि ध्यान हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। यह हमें अपनी इच्छाओं और सपनों के प्रति स्पष्टता प्रदान करता है। ध्यान करने से हम अपने डर और संकोच को छोड़कर अपनी सच्ची इच्छाओं की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपको आपके भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। ओशो ध्यान के लाभ। आंतरिक शांति। ध्यान से मन शांत होता है। स्पष्टता। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता प्रदान करता है। सकारात्मकता। ध्यान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। It is just a चलिए सुनते हैं consequence ओशो of being क्या कहते हैं इस silent बारे में। and in tune with existence. Love arises in you. Life becomes abundant. Laughter for no reason. Just because this whole existence is so hilarious. This is not philosophy. This is the consequence of being silent.
there is no tomorrow. If there is tomorrow, you cannot stop worrying about it. Tomorrow never comes. It is a process of worrying. Neither there is any yesterday. One is no more, one is not yet. All that is in our hands is the present moment, now, here. And this is a miraculous experience. If there is no yesterday, no tomorrow, and this very moment you are silent, all worrying disappears. All imagining, dreaming, projecting disappears. And it is not that you have to enjoy this moment. That rejoicing arises out of this moment. But you are never here. You are always somewhere else. You are never in the now. You are always then. Otherwise, everything is available. But you are absent. I make my people to understand a very simple fact, not a philosophy, something existential, not philosophical, that you be present to this moment and then see what happens. ओशो की शिक्षाएं। समृद्धि के लिए कदम। ओशो ने समृद्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। उदाहरण, हर सुबह उठते ही उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य या काम। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाएं। उदाहरण, जब भी कोई समस्या आए उसे एक चुनौती के रूप में देखें और सोचें कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। स्वयं पर विश्वास करें, अपने आप में विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। उदाहरण, जब मैंने पहली बार सार्वजनिक बोलने की कोशिश की तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मैंने खुद पर विश्वास किया और धीरे धीरे बेहतर होता गया। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। ओशो के विचारों का प्रभाव। ओशो के विचार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे सामूहिक चेतना को भी जागृत करते हैं। जब हम अपने भीतर की समृद्धि को पहचानते हैं तो हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव। मैंने देखा है कि जब मैंने ओशो की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया तो मेरे रिश्ते बेहतर हुए और मैंने अधिक संतोष का अनुभव किया। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे ओशो का दृष्टिकोण हमें जीवन में समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। उनके विचारों से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी समृद्धि आपके भीतर ही छिपी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप ओशो की शिक्षाओं से प्रेरित होंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइफ एंड डिविनिटी पर।